Hello everyone, this is Jasmine here, your mentor from Bootcamp, and in this video, I am going to talk about various kinds of order. I am going to talk about how to place a buy order, how to place a sell order, and how to understand what different kinds of order we have. So everybody knows that I work on the Zerodha terminal. So in front of you, this is a Zerodha terminal, and right now the market is open. It's 12 o'clock. The market is right now trading. So in the live market, I would be placing out some buy orders and some sell orders to show you how a order is executed. How can I place a buy order or how can I place a sell order, and what are various categories of orders that I have. So hypothetically, let's take that I want to buy HDFC Bank stock. First of all, even before buying, I would like to tell you how to create this wish list. If you see, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 7 pages here. And what we can do is in these 7 pages, we can add the companies that we want to track upon or we want to look for. For example, right now, let's say I am tracking Wipro. So I will just type out Wipro at the search corner. It will come up with Wipro. It would be more viable if you go with the NSE options because NSE has more volumes as compared to BSE. So majority of the trades that are doing is majorly done on the NSE platform instead of the BSE platform. तो अगर आप लोग NSE prefer करेंगे तो that would give you a more liquidity and more easy executions of buying and sellings of your trades. Now, let's say I am tracking, I want to add Wipro to my screen. Then I want to see what Reliance is doing. So I will type out Reliance name and see there is Reliance Industries. I click on the add button. There's 4 option: buy, sell, chart, this market that I would be talking right now, and then plus button or add button. I add it. Now if you want to remove something, so if I click on here, I have a delete button. If I click on the delete button, it is gone. So this is a way how I add or subtract my wish list. This is a way to create your own wish list, to add any companies that you want to add into your wish list screen or delete any companies that you do not want right now. For say I want to see what HDFC Bank is doing. So what I'll do is I will add HDFC Bank here, add, and then see 1393 rupees is the current market price of HDFC Bank, and I have added this and I can see here that what is the current market price of HDFC Bank. Now next thing comes is how do I place a buy order or how do I place a sell order in any stock of my choice. Let's say I want to buy HDFC Bank first of all. So you see there are two buttons. One is a buy button, another one is a sell button. So if I click on the buy button, that means I want to buy the stock of HDFC Bank. And when I'm buying the stock of HDFC Bank, there is first and foremost thing two options it is asking me, should I go for intraday or should I go for long term. यहाँ पे दो option आ रहे हैं, one is an intraday option, another one is a long term or CNC option. Intraday, if you are placing any order, for example, I place this order in intraday for one quantity, and let's say I want to buy HDFC Bank at 1380 rupees. Okay, and I put a intraday order and I do this buy. So you see, I can see here on the chart one quantity is showing up, and if I go to the order book, here you can see that one order is coming up, and I have basically one quantity of what? One quantity of HDFC buy order open and the product type is MIS. Now I am cancelling this order. If I am doing any order in the MIS, margin intraday square off, that is basically telling me that what I am doing is I am placing an order, giving it a liberty that today the I am buying or I am making any execution at the current market price right now, and before the market closes, that is before 3:30, the usual timing for clearing of your MIS trade for Zerodha is 3:20, 317 to 320, ऑप्शंस का 320 है और कैश का 317 है. 3:17 से पहले पहले you have to exit from your intraday position, because intraday position क्या है? Margin intraday square off. What are you telling to your broker? You are telling that I am taking this position and I am going to end it within the particular day only. मतलब if you are buying HDFC Bank right now, so before the market closes you are going to sell or you are going to close your position of HDFC Bank. अगर आप नहीं करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप
क्लोज हो जाएगी पोजीशन 318 पे, अपने आप आपका ब्रोकर क्या कर देगा, उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा। इंट्राडे ऑर्डर प्लेस करने का मतलब है योर वैलिडिटी इज जस्ट विद इन द डे। आपने सुबह कुछ बाय किया है, एंड ऑफ द डे आपको उसको खत्म करके जाना पड़ेगा या उसको क्लोज करके जाना पड़ेगा। अगर आप खुद से क्लोज नहीं करोगे तो आपका ब्रोकर क्लोज कर देगा। ठीक है। अभी सेम चीज अगर मैंने लॉन्ग टर्म या सीएनसी में बाय करी है, सीएनसी इज कैश एंड कैरी या फिर लॉन्ग टर्म, या फिर इसको अगर आप कोई और ब्रोकर यूज करें तो शायद एनआरएमएल भी लिखा हुआ आ सकता है। एनआरएमएल का मतलब है नॉर्मल। अगर आप उसमें बाय करते हैं या सीएनसी में बाय करते हैं, दैट मीन्स दैट राइट नाउ आई एम बाइंग द स्टॉक ऑफ एचडीएफसी बैंक अगेन, लेट्स से आई एम बाइंग एट 1380 rupees, and if I place a buy order, now the buy order here comes would be showing me the product type which is CNC. That means I buy this stock of HDFC Bank at 1380 rupees today, and I am going to sell it at sorry, and I'm going to sell it at any point of time. There's no restriction that you have to sell it today only or you have to sell it tomorrow only. You can carry this position or you can carry this stock for as many years or as many days or whatever time frame you need to, you can carry it. मतलब अगर हमने HDFC बैंक को या किसी भी स्टॉक को किस में बाय किया है, सी एंड सी में, दैट इज कैश एंड कैरी में बाय किया है, दैट मीन्स वी कैन कैरी दैट स्टॉक फॉर any मतलब for any number of days, for n number of days we can carry that stock, even for years we can carry that stock. Nobody is going to ask her that why you did not sell it off by the end of the day. This is basic difference between an MIS order and an intraday order. What is an MIS order? That you trade something today in the market and before the market closes you have to exit or you have to close your position. What is CNC or cash and carry? That you are placing some order today and that is executed in the market. Now you can carry out that position for as long as you want. If you want to book your profits tomorrow, you can book it tomorrow. If you want to book it day after tomorrow, you can do that. If you are waiting for, let's say, 15-20% move in the stock and you anticipate that this target would be somewhere achieved within the span of my next coming 1 or 2 months, so you can hold the stock for 1 or 2 months also. Okay, so this is CNC order, and the one that we discussed for intraday was MIS order, margin intraday square off. Okay, अभी अगर यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो देयर इज वन थिंग विच इज कमिंग एज मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ विंडो में क्या होता है, this is showing that how many number of buyers are there at the current market price and how many number of sellers are there in the current market price. In normal brokers you would be seeing only 5 best buyers and 5 best sellers of the market. For example, see, somebody is ready to buy 1392 rupees 0.70 paise pe 32 quantity of HDFC Bank and somebody is ready to sell it 75 पैसा। कितने रुपए का डिफरेंस था, 5 पैसे का। सो दिस इज माय मार्केट डेट विंडो, जिससे मुझे पता चलता है दैट एट व्हाट प्राइसेस ऑर्डर्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, किस लेवल पे किस प्राइस पे कैसे ट्रेड हो रहा है, दैट इज व्हाट आई गेट टू नो फ्रॉम दिस। ओके, 1392 रुपीज पे जैसे अभी करंटली ट्रेड हो रहा है। Now, if I close it up, market depth, I can even see actually more than 5 market depth in Zerodha. I can see up to 20 levels कि अगले next 20 levels तक कितने लोग buyer बन के बैठे हैं market में और कितने लोग seller बन के बैठे हैं market में. I can see that. Okay, so this is about buy order. Same is with a sell order. Intraday you are doing for a day only. Long term you are holding something for a longer period of time and you want to sell it, so you place it on the sell order. Now the next two things if you see here is long term and sorry, next two things that you see here is limit order and market order. अभी लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर क्या है, इफ आई से दैट राइट नाउ आई वांट टू प्लेस समथिंग और आई वांट टू बाय समथिंग एट द मार्केट ऑर्डर, मतलब जो भी मेरा करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसी पे मुझे बाय करना है, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि मैंने मार्केट ऑर्डर पे अपना ऑर्डर प्लेसमेंट किया है। इफ आई वांट टू बाय समथिंग एंड आई वांट टू बाय इट एट the limit order, that means I am looking forward कि ये particular price पे होगा
तभी मैं उसे बाय करूंगा, नहीं तो मैं उसे बाय नहीं करूंगा। दो टाइप के मेरे ऑर्डर होते हैं, एक होता है मेरा मार्केट ऑर्डर और दूसरा होता है मेरा लिमिट ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू बाय द स्टॉक ऑफ एचडीएफसी बैंक एंड आई पुट अ ऑर्डर जहाँ पे मैंने लिमिट डाला है। तो लिमिट में आई कैन पुट एनी प्राइस, जैसे मुझे 1380 रुपीज पे चाहिए फॉर अ सिंगल क्वांटिटी ऑफ एचडीएफसी बैंक। नाउ अनदर ऑप्शन आई हैव इज अ बाय एट मार्केट प्राइस। यहाँ पे देखें तो मेरा ये जो बायर विंडो है, क्वांटिटी ओपन है मगर प्राइस विंडो अब लॉक हो जाता है। that means that my order would be executed at the current market price। जिस भी current market price पे, जैसे 1392 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, 1392 रुपीज पे my stock would be इन माई अकाउंट, मेरे अकाउंट में ये स्टॉक आ जाएगा एट द करेंट मार्केट प्राइस। तो मैं दो तरीके से ऑर्डर प्लेस कर सकती हूँ, लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर। इफ आई एम प्लेसिंग अ लिमिट ऑर्डर, I am telling my broker that let's say I want to buy it at 1390 rupees. So my order would only be executed if the stock comes to 1390. For example, I want to buy it at 1380 rupees. Abhi I am placing this buy order. My order would only and only be executed if it comes to 1380 rupees. अगर ये 1380 रुपीज पे नहीं आएगा तो माई ऑर्डर वोंट बी एग्जीक्यूटेड। इफ आई गो फॉर अ सेकेंड ऑप्शन, दैट इज बेसिकली अ मार्केट ऑर्डर, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और अभी मार्केट मार के दिखा देती हूँ, एक ही क्वांटिटी का है। सी, I have selected out intraday option and I have selected out market, और जैसी मैंने किया, सी, executed complete, जो भी मेरा करंट मार्केट प्राइस चल रहा था उस पे मेरी एक क्वांटिटी एग्जीक्यूट होके आ गई। इफ यू सी, MIS प्रोडक्ट वन क्वांटिटी 1392 रुपीज पॉइंट 05 पैसा पे I have traded this stock. Now if I want to sell the stock, what I am going to do, sell वन क्वांटिटी ओनली ऑन द मार्केट प्राइस, क्योंकि मैंने अभी मार्केट प्राइस पे बाई किया, मैं मार्केट प्राइस पे सेल करके भी दिखा देती हूँ। एंड ऑन द मार्केट प्राइस आई एम प्लेसिंग दिस सेल ऑर्डर, खत्म। सो आई बॉट इट एट 1392 rupees 0.05 पैसा एंड आई सोल्ड इट एट 1392 rupees 0.15 पैसा। सो ये मेरा क्या है, दिस इज ऑन द मार्केट प्राइस, जो भी मेरा करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। एट द करंट लेवल आई हैव एग्जीक्यूटेड माय ऑर्डर। if I place any order in MIS, so it is an intraday thing. If I am placing any order in long term, it is for at any point of time I want to hold it, कभी भी मैं कर सकती हूँ। if I am doing an market order, that means that the orders would be executed as and when I place the order, whatever the market price is. If I am putting a limit order, so my orders would be executed at the price that I want. I do not want it to buy at 1392 rupees. I want to buy it 1380 rupees. So I am placing a 1380 rupees buy order, and my order would only be executed if the stock comes to 1380 rupees. इसमें मेरे को क्या है, इसमें लिमिट ऑर्डर में आई डू नॉट हैव द लिबर्टी दैट माई ऑर्डर्स वुड बी एग्जीक्यूटेड 100%, बट आई डेफिनेटली हैव द लिबर्टी दैट माई ऑर्डर वुड बी एग्जीक्यूटेड एट द लेवल वेयर आई वांट इट टू बी एग्जीक्यूटेड। एंड इन बेसिकली इन मार्केट ऑर्डर्स आई हैव अ थिंग दैट ओके, मुझे स्टॉक चाहिए, हर हालत में मेरे अकाउंट में वो स्टॉक आ जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस प्राइस पे आ रहा है। वो यहाँ पे जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1392 रुपीज 0.45 पैसा, उस पे एग्जीक्यूट होगा। और एग्जीक्यूट होते ही व्हाट आई वुड सी इज इट वुड बी इनटू माय अकाउंट एज आई हैव शोन टू यू इन दिस ऑर्डर, ठीक है। So this is basically what, this is basically difference between an intraday order and a CNC order, then in a difference between a limit order and a market order. अभी जैसे मेरा लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर होता है, उसके साथ साथ ही मेरा एक AMO ऑर्डर भी होता है। यहाँ पे अगर आप पढ़े तो क्या लिखा आ रहा है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। अभी अगर मैं यहाँ डालूंगी तो ये मेरा आफ्टर मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बेसिकली ये ऑर्डर क्या है, 3:30 to 4 o'clock के बाद अगर आई वॉन्ट टू प्लेस एनी ऑर्डर, आई वॉन्ट टू लेट से आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक ऑफ HDFC बैंक and I am busy tomorrow morning and I cannot look where the market price is coming across, but I think that tomorrow I have seen Dow Jones and Dow Jones is trading on the positive zone, and I think tomorrow HDFC bank is going to open gap up and my target would be achieved with that. Let's say I have a target price of 1500 rupees, let's say hypothetical, हम कुछ भी assume कर सकते हैं।
So I place a 1500 rupees AMO order, सॉरी AMO सेल ऑर्डर आई प्लेस एट 1500 रुपीज. अगर मैं अभी यहाँ पे डालूंगी ना, ये मेरा ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा क्योंकि AMOs कैन ओनली बी प्लेस्ड आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स. ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज द वे वेयर वी कैन प्लेस आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स. मार्केट क्लोज होने के बाद मैं अपने ऑर्डर्स को कैसे प्लेस कर सकती हूँ. आई कैन पुट अ बाय ऑर्डर ऑल्सो. टुमारो मॉर्निंग आई थिंक दैट द स्टॉक इज गोइंग टू ओपन एट सर्टेन लेवल्स, या कल अगर सुबह खुलते इस लेवल पे आ जाए तो मुझे 100 क्वांटिटी स्टॉक की चाहिए. तो मुझे चाहिए 100 क्वांटिटी स्टॉक की 1360 रुपीज पे. सो आई कैन एक्चुअली प्लेस अ 1360 रुपीज का बाय ऑर्डर आफ्टर द मार्केट क्लोजेस. यहाँ पे अभी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, दैट वुड ओनली बी एग्जीक्यूटेड और दैट वुड ओनली बी प्लेस्ड आफ्टर द मार्केट हैज बीन क्लोज्ड. ऑर्डर हमारा प्लेस हो जाता है और प्लेस होने के बाद जब हमारा मार्केट ओपन होता है और हमारे स्टिपुलेटेड प्राइस पे आता है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है. अगर नहीं आता है तो फिर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है. बट वी हैव द लिबर्टी दैट वी कैन प्लेस एन आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स. मार्केट के क्लोज होने के बाद अगर मुझे लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर लेवल पे मुझे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है तो मैं डेफिनेटली एएमओस के बाद या आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स के साथ कर सकती हूँ मार्केट क्लोज होने के बाद भी. The last thing that I am going to discuss here is SL and SLM. Now stop loss and stop loss market दो चीजें हैं. स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट की, जैसे कि अभी हमने क्या समझा था, दैट आई हैव वन थिंग विच इज मार्केट ऑर्डर, अनदर थिंग विच इज लिमिट ऑर्डर. ऐसे ही मेरा क्या होता है, एस एल एंड एस एल एम होता है. अगर अभी यहाँ पे देखूं तो इन एस एल आई हैव टू बॉक्सेस वेयर आई कैन पुट माई प्राइजेस, and in SLM I have just one box which is a trigger price box and I cannot place any order in this price. सबसे पहले तो let me make you understand what SL is or what stop loss is. SL basically means, let's say I have bought a stock of HDFC Bank at 1370 rupees and I have a stop loss or I have a support line. अभी हमने ये सब डिस्कस करना है in the boot camp. So I suppose अभी थोड़ा सा confusion होगा, but listen to my concept what I am trying to say. Let's say I have bought Nifty. यहाँ पे अभी Nifty का चार्ट खुला है. Let's say I have bought Nifty and I am buying Nifty at the current levels. ठीक है, मैंने नहीं, यहाँ पे मैंने Nifty को already क्या किया हुआ है, बाय किया हुआ है. So this is my area which was acting as my support area in the chart and I have bought Nifty at this level. So this level which is 16,700 is my what is my support level. So I have bought at the support level. If my stock closes below the support area, my SL would be hit. अभी SL क्या है, SL मुझे स्टॉप लॉस बताता है. मतलब कि अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेट से 10,000 रुपीज का कैपिटल है जिससे हम लोग ट्रेड करें. ठीक है, 10,000 रुपए हमारे पास. अभी मार्केट है, वी आर लर्निंग एंड डेफिनेटली वी वुड बी डूइंग वेरी अमेजिंग इन द मार्केट. बट एट टाइम्स ऐसा हो सकता है दैट वी आर अ लिटिल बिट इनकरेक्ट इन अवर प्रिडिक्शन, अवर डायरेक्शंस आर नॉट करेक्ट इन द मार्केट. तो क्या होता है, अगर हमारे डायरेक्शन करेक्ट नहीं है मार्केट में तो हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉसेस फॉलो करते हैं. अब ये थोड़ी है कि अगर हम गलत हो गए तो हम अपनी 10,000 कैपिटल को स्टेक पे लगा दें, ये पूरी कैपिटल हम लॉस में कन्वर्ट करते हैं. ऐसा नहीं करना है ना. ये हमारी कैप है, इसको हमें सिक्योर करके चलना है. एंड आई हैव पुट अ स्टॉप लॉस. मैंने HDFC बैंक को 1370 रुपीज पे बाय किया था और मेरा स्टॉप लॉस था 1360 रुपीज का. मतलब 10 रुपीज पर शेयर का मेरा क्या था, रिस्क था. और मैंने यहाँ पे क्या किया था, 10 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बाय किए थे. तो 10 रुपीज पर शेयर ऑफ रिस्क इनटू द क्वांटिटी विच इज 10. सो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पूरा का पूरा रिस्क हो गया जो मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेड में लिया है. इस पर्टिकुलर ट्रेड में 100 रुपीज का मेरा रिस्क है. मतलब अगर मैंने लूज किया तो आई एम पुटिंग अ स्टॉप लॉस दैट आई एम ओनली एंड ओनली गोइंग टू लूज 100 रुपीज. दैट इज व्हाट स्टॉप लॉस स्टैंड्स फॉर. स्टॉप लॉस का मतलब है कि आप अपने लॉसेस को लिमिट कर रहे हैं. यू आर लिमिटिंग योर लॉसेस इन द मार्केट. फॉर एग्जाम्पल अभी उसमें हमारे ऑर्डर प्लेसमेंट का डिफरेंस है, बस और कुछ नहीं है. एंड इन डेप्थ आई वुड बी टेलिंग अबाउट स्टॉप लॉस इन दी सेशन. सो अभी मैं आपको सिर्फ ऑर्डर प्लेसमेंट बता रही हूँ कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्लेस एन SL ऑर्डर. SL ऑर्डर मुझे क्या लिबर्टी दे रहा है, यहाँ पे एक ट्रिगर प्राइस है और एक प्राइस है.
ट्रिगर प्राइस बेसिकली क्या होता है? ट्रिगर प्राइस इज अ प्राइस वेयर माय ऑर्डर, फॉर एग्जांपल माय स्टॉप लॉस इज 1360 रुपीज, ठीक है? My 1360 rupees is my stop loss, and I want my order to be activated when the stock comes to 1362 rupees. तो ये 1362 rupees पे क्या होगा? अगर मेरा स्टॉक 1362 रुपीज पे आ जाता है तो माई स्टॉप लॉस ऑर्डर वुड बी एक्टिवेटेड इन द मार्केट। अभी हमने ये जैसे प्लेस कर दिया तो अभी क्या, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, एएमओ नहीं, रेगुलर में। अभी हमने जैसे ये प्लेस कर दिया तो अभी मेरा क्या हो रहा है? ये अभी मेरा ये जो ऑर्डर है ये क्या है? ये पैसिव ऑर्डर है, ये अभी एक्टिव ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं हुआ है। सी, ट्रिगर इज पेंडिंग। जैसे ही स्टॉक 1362 रुपीज पे आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रिगर एक्टिव। मतलब अब मेरा ये जो ट्रिगर प्राइस है वो एक्टिवेट हो चुका है, एंड आई हैव गिवन द प्राइस रेंज 1360 से लेकर 1362 रुपीस तक। इस जोन के बीच में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए। सो माय ऑर्डर्स वुड बी एग्जीक्यूटेड within the range of 1360 to 1362 rupees. This is SL. Now what I am going to do is I am going to place a SLM order. इसमें अभी मेरा ये मार्केट वाला विंडो, मतलब यहाँ पे मेरा प्राइस वाला विंडो खत्म हो गया है जैसे हमारे मार्केट ऑर्डर में होता था, एंड आई हैव ओनली वन थिंग विच इज अ ट्रिगर। अभी यहाँ पे मैंने 1360 is my stop loss and that I have placed as a trigger. See, now trigger is pending right now, and if you see here, previously it was showing 1360 rupees, सॉरी 1360 पे लगा दिया मैंने ये ट्रिगर। एक्चुअली मुझे 1362 पे लगाना चाहिए था। एक सेकेंड, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ भी। कैंसिल एंड 1362 रुपीज, ठीक है? ये मैंने लगा दिया 1362 रुपीज पे ट्रिगर। इफ यू सी नाउ इट इज शोइंग 1362 रुपीज, और इधर की साइड मुझे क्या दिखा रहा है? 000। दैट इज बेसिकली टेलिंग मी when the stock hits 1362 rupees, my trigger would be activated and my order would be placed on the current market price. मेरा जो भी current market price चल रहा होगा मार्केट में, उस पे जाके मेरा stop loss hit हो जाएगा, my orders would be executed, my stop loss would be hit, and this is a basic difference between SL order and an SLM order. SL में क्या है? My orders would be executed according to the range or according to my price that I want. In SLM, my orders would be executed on the current market price. SLM gives me the assurity that market में कुछ भी हो जाए आपका stop loss मैं hit करके ही लाऊंगा। और SL मुझे क्या लिबर्टी देता है? that anything happens, your order would be executed within the price range of 1360 rupees to 1362 rupees. So this is about various kinds of order. अभी एक चीज में और कंफ्यूजन आएगा, बिकॉज काफी लोग जो है अपने मोबाइल से ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आता है? एक वैलिडिटी आता है। सो वैलिडिटी में आता है डे, इमीडिएट और मिनट्स। सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस। बेसिकली डे क्या है? You place some order today in the morning that would be open in the market for a whole day. पूरे दिन के लिए वो ऑर्डर क्या रहेगा? ओपन रहेगा। अगर आपने कोई भी ऑर्डर इमीडिएट डाला है तो या तो वो एकदम एग्जीक्यूट हो जाएगा मार्केट में, राइट नाउ इट वुड बी एग्जीक्यूटेड। अगर वो एकदम एग्जीक्यूट नहीं हुआ इन द करंट लेवल, इफ इट इज नॉट एग्जीक्यूटेड, सो इट वुड बी कैंसल्ड आउट। जैसे अभी यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल मैंने खुद किया है, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अगर वो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जीक्यूट होता है तो वेल एंड गुड है, अगर वो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होगा तो वो इमीडिएटली कैंसिल हो जाएगा। Now there is third category which they have introduced now कि मुझे नेक्स्ट 5 मिनट में अगर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मेरा ऑर्डर अपने आप मार्केट से कैंसिल हो जाएगा। So if you are placing any order, usually we select out the day validity कि डे में मेरा ये मार्केट आए, प्राइस आए, मार्केट में ये प्राइस आए, so my orders would be executed at that point of time. So these things would be coming up when you would be placing your orders. Okay, आई सपोज अभी सबको ये वाली जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो नहीं आएंगी। एक चीज है, यहाँ पे एक कवर ऑर्डर भी होता है। कवर ऑर्डर कुछ नहीं होता है, कवर ऑर्डर इज वेरी सिंपल थिंग। जब हम कोई भी ऑर्डर बाय करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए,
तो वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें बोल रहा है कि अगर आपको 1387 रुपीज पे HDFC बैंक को बाय करना है तो आप अपना साथ साथ में ना स्टॉप लॉस भी बता दें। और मैं बोलती हूँ कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो है 1350 रुपीज, 60 रुपीज है, वॉट एवर प्राइस। तो मेरा साथ साथ में एक स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लग जाता है, तो वो कवर ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है कि मेरा एग्जीक्यूशन प्राइस भी पता है ब्रोकर को, मेरा स्टॉप लॉस प्राइस भी पता है पहले से ही ब्रोकर को। सो दैट इज अ कवर ऑर्डर दैट वी प्लेस इन द मार्केट। ओके, so now I am going to take halting out this video. I suppose everybody has understood the concept of various kinds of order, how to create a wish list, what is a market depth window. Market depth window ये होता है, ये वाला पोर्शन बायर्स को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू वाला ग्रीन वाला पोर्शन सेलर्स को रिप्रेजेंट करता है। इफ यू सी हेयर, मेरे पास कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आ रही है। ओ, व्हाट इज द ओपनिंग प्राइस, हाई हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस, प्रीवियस क्लोज, कल स्टॉक कितने रुपए पे क्लोज होके गया था, एवरेज प्राइस अभी तक मॉर्निंग में स्टॉक जब से ओपन हुआ है तो किस एवरेज प्राइस पे ट्रेड हो चुकी हैं क्वांटिटीज, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी। अभी देखें यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रही है, तो मतलब मुझे दिखा रहा है कि लास्ट मिनट पे अभी कितनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुई है। देन वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैव बीन एक्सचेंज इन बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ बायर एंड सेलर, एंड व्हाट इज द लो प्राइस ऑफ द स्टॉक। ओके, lower circuits and upper circuits I would explain in the session only.